Good morning, students. Good morning, all of you. And we start here for the English class. And now it is basic class of English. And this is we are taking the English class today. That is only for use for so many kinds of the vacancies. And you apply. I think that you are applying in the different vacancies, the competition classes, NDA, CDS, and SSC, bank, PO, clerk. So English is much an important topic of that, and most of the coaching institutes are that you are taking the coaching classes as SSC, and next you are taking the next class NDA, but this is we are taking only the language, and there is a no classification of the language is a unit. If you are the mastery of the language, then you can apply in any type of the competition exam. So first they start to the language, and language, what is language? Language language is a communication to the one person to another person. Your feelings and ideas through the language. Your feelings, ideas thoughts expressed through the language. Your feelings, ideas, thoughts expressed through the language. Next, we express our thoughts and feelings that through the sentence. Next, what is sentence? What is sentence? So what is sentence? So sentence is an arrangement of words having a complete meaningful sense. Sentence is an arrangement of words. Sentence is an arrangement of words having a complete meaningful sense. So, complete meaningful sense. So, name sentence. So, a sentence. This is what is sentence? The sentence is a group of letters. What is sentence? Sentence is a group of words, not a complete sentence. I am talking about the sentence word, like that, what, is, complete, meaningful, that is it. So any sentence, any word like that. Book is a word, but it is group of letters. The first smallest significant unit on writing section, then the letters. So what is letters? Letters is alphabets, and alphabets A to Z 26 alphabets. That
all are letters, and letters two types of letter, one small letter and capital letter. Capital letter and small letters. Next, letters like that A, B और बुक में letters B, O, K, बुक. तो बुक letters, तो letters a group of letters make a word. Group of words having some meaning. Word is a group of letters having some मीनिंग वर्ड जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, अर्थ मीनिंग निकले, लेट वर्ड्स. एंड वर्ड्स ए ग्रुप ऑफ words again words, and if we classification of the words then divided into the syllables. The words syllable a smallest significant unit of sound. साउंड की ध्वनि छोटी से छोटी हो, जैसे हमने लेटर्स लिखा. अब लेटर्स के बाद वर्ड्स, और वर्ड का भी अगर क्लासिफिकेशन हम करना चाहें तो इसका होगा सिलेबल. और सिलेबल में जैसे हमने लिखा यहाँ पे मंडे. अब मंडे इज ए वर्ड, बट इन दिस वर्ड देर आर टू syllables, man and day. The one syllable and two syllable. तो syllable, तो letters, group of letters having syllable and make a two or more than two syllables, that words. One word syllable having like that run, I. These are the one syllable. Then words, a group of words having some meaning, that is called phrase. Letters, syllable, words and phrase. Phrases have some sense, meaning, but there is not a complete meaning. Phrase, तो letters, group of letters, then syllable, words, phrase. What is phrase? Phrase is a group of words and a part of the sentence. Phrase, example phrase के under the table, between the chairs. तो under the table, between the chairs, that is called a phrase. A group of words and having some sense but not a complete meaning. Phrases. And phrase, after phrase, a clause, a part of a sentence but not a sentence. Like that clause, a group of words are having some meaning but not a complete meaning, because
and it is a part of a sentence. Clause is a part of a sentence. So clause not a complete sentence, but it is having some meaning and it is depend on the other clause. It depend on the other clause. Types of clauses: the principal clause, coordinate clause, subordinate clause. What is the difference between principal clause, coordinate clause and subordinate clause? Principal clause, most of the students they are not know about the what is a principal clause. Principal clause never start with the conjunction, never start like that. कहें if I were a bird, I would fly in the sky. So if I were a bird, I would fly in the sky. It means this is a complete sentence, but in this sentence there are two clauses. There are two clauses, and which is principal clause and which is subordinate clause. So this is start from conjunction. So that clause is start from conjunction, that is called subordinate clause or coordinate clause. The conjunction are used the subordinate, coordinate clause. It means and, but, either are, neither nor. These are the coordinate clause. And if the subordinate conjunctions start, if, whether, so that is a start of the subordinate conjunctions. That is called subordinate clause. And principal clause, there are no any conjunction start from the principal clause. So I would fly in the sky. It is principal clause. It is principal clause. So principal clause, coordinate clause, subordinate clause, and coordinate clause joins and, but, either are, and coordinate clause and subordinate clause. That next topic, sentence. Sentence after the clause. Sentence. Sentence is an arrangement of a group of words. Sentence is an arrangement of a group of words that make a complete and meaningful sense. So a sentence is required a subject and predicate. A sentence is required a subject and predicate. ठीक है. He goes to market. This is a sentence, but he is subject and goes to market is predicate. She, subject, eats a mango is predicate. Then she eats a mango. Like that, under the table there is no verb. It means no predicate. It means it is not a sentence and not a clause. Clause or sentence having a one subject and predicate. So it is a subject and predicate, the part of the sentence. Then next, types of sentence. Types of sentence. Next, types of sentence. That before types of sentences. Types of sentence. So first with types of sentence, we divided into the classifications of that. There are we divided in three classifications. Classification first, classification second, and classification third. So according the classification first, types of sentence, classification of sentence. So our type is first, classification of first. First, assertive sentence. Assertive sentence or declarative sentence. Assertive sentence or declarative sentence. These sentences, such sentence state a fact or opinion or idea. Such sentences state a fact, opinion or idea. Like that, he is a teacher. He is a टीचर. डेट टीचर है, फैक्ट बात है. तो इस फैक्ट बात को हम असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कहेंगे. नेक्स्ट, आई लाइक राम.
and Lakshman, but I like Ram the most. It is fact, there are the two person and one person is Ram, another person is Lakshman, and both are good, but I like the most. So like that fact, he is the best person I have ever found in my life. He is the best person I have ever found इन माई लाइफ। तो किसी भी सेंटेंस का जिसमें फैक्ट हो, आइडिया हो, ओपिनियन हो, इस तरह के फैक्ट जो तथ्य होते हैं उनको डिक्लेरेशन करते हैं हम। किसी चीज़ को डिक्लेरेशन करना, किसी चीज़ को डिक्लेरेशन मतलब घोषणा करना, बताना, उस चीज़ को हम कहेंगे असर्टिव सेंटेंसेज, उस पार्ट में आएंगे। लाइक असर्टिव सेंटेंस कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव, बोथ टाइप ऑफ हो सकते हैं। लाइक दैट ही इज़ नॉट ए गुड बॉय, दिस सेंटेंस टाइप ऑफ ए नेगेटिव, बट इट इज कॉल्ड ए असर्टिव सेंटेंस एंड डिक्लेरेटिव। हमने डिक्लेयर कर दिया कि ही इज नॉट गुड बॉय, तो ही इज नॉट ए गुड बॉय, गुड बॉय है। नेक्स्ट, फर्स्ट क्लासिफिकेशन में फर्स्ट पार्ट, क्लासिफिकेशन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट असर्टिव सेंटेंस, क्लासिफिकेशन फर्स्ट का सेकंड पार्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्यों को भी कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में द सेंटेंस विच आर यूज टू परमिट, आपको किसी चीज़ का परमिशन दी जाए, परमिशन इजाज़त, परमिट, कमांड, हम किसी को कमांड देते हैं, कमांड, और रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट आर नॉन एज ए इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या क्या हुआ, रिक्वेस्ट हुई, प्लीज, रिक्वेस्ट, कमांड एंड, तो द सेंटेंस विच आर यूज टू परमिट, कमांड और रिक्वेस्ट आर नॉन एज ए इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कमांड कह सकते हैं, ऑर्डर हो सकता है, लाइक इट प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, इट इज़ ए ऑर्डर, मुझसे ऑर्डर कर रहा हूँ। ये रिक्वेस्ट, हमने प्लीज़ लगा दिया, रिक्वेस्ट हो गया। तो प्लीज़ कम हियर, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ कम हियर। डोंट प्ले हियर, यहाँ खेलना मना है, डोंट प्ले हियर। कॉल हिम, उसे बुला के लाओ, कॉल हिम। प्लीज़ डोंट टॉक टू मी, मेरे से बात मत करो। हमने डायरेक्ट उसको ऑर्डर किया, और अगर हम ऑर्डर करते हैं तो प्लीज़ नहीं लगाएंगे, और रिक्वेस्ट का आता है तो हम उसे प्लीज़ करेंगे। हम कहेंगे शट द डोर, क्लोज द विंडो, ओपन द विंडो। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेज। तो इंपेरेटिव सेंटेंस, तो क्लासिफिकेशन फर्स्ट का फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें और है, इसे हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करना, किसी चीज़ को क्या बताता है, फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया। द नेक्स्ट है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस में परमिट, कमांड एंड रिक्वेस्ट बताते हैं, ऐसे सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंस। ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दैट सेंटेंसेस। क्लासिफिकेशन सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट हमारा चल रहा है। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन फर्स्ट क्लासिफिकेशन फर्स्ट में फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, exclamatory sentence and optative sentence. Exclamatory sentence and imperative sentence you have seen about that definition and examples that. Next exclamatory, the third is exclamatory sentence. exclamatory हिंदी में इसको विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते हैं। तो exclamatory sentence the sentence which used to express sudden emotions, आपके सडन इमोशंस को आपको फीलिंग्स होती है, तो सडन इमोशंस सच एज जॉय, ग्रीफ, शॉक, फियर एंड एक्सेट्रा। आप किसी भी चीज़ को सडन फीलिंग करते हैं, चाहे वो दुख की हो सकती है, खुशी की हो सकती है, हैप्पीनेस हो सकता है इसके अंदर, ग्रीफ हो सकती है एंड एंगर, गुस्सा हो सकता है। दीज टाइप ऑफ फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड टू द exclamatory sentences। तो exclamatory sentence के अंदर one thing is that the sign, exclamatory sign, this is the exclamatory sign, and exclamatory sign the sentence which used to express sudden emotions,
आई अगेन रिपीट द वर्ड्स, सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कौन सा सेंटेंस यूज़ करते हैं हम? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जॉय हो सकता है, ग्रीफ है, शोक है, फियर है। दिस टाइप ऑफ फीलिंग्स आर एक्सप्रेस थ्रू द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। लाइक द सेंटेंस व्हाट ए शॉट। जब आप कमेंट्री सुनते हैं, टीवी देखते हैं, तो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर 6 लगाते हैं तो आप कहते हैं वो व्हाट ए शॉट। तो व्हाट ए शॉट, थैंक यू सो मच, इट इज थैंक यू सो मच। oh no, it is when you listen about some suddenly information या news and that about the news, तो about उस न्यूज़ के बारे में आप कहेंगे oh no my god। तो how tragic, क्या विपदाई, how tragic, oh my god, thank god, थैंक गुड। कोरोना के लिए आप जब इस बारे में फीलिंग्स आएगी आपकी इस तरह की, तो आप क्या कहेंगे? ओ गॉड, सो मेनी पीपल्स आर डाइड इन दिस डिजीज। और जब कोरोना चला जाएगा, आप क्या फीलिंग्स आएगी आप में? थैंक गॉड, बच गए। तो इस तरह की जो फीलिंग्स आती है ये होगा। तो क्लासिफिकेशन फर्स्ट में हमने 4 पार्ट बताएं। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कौन सा हुआ? जिस चीज़ को हम फैक्ट बताते हैं, जो है उसका डिक्लेरेशन करते हैं किसी चीज़ का। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव में आपने ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में आएंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आप ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए। इसके नेक्स्ट पार्ट होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस से पहले एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। क्लासिफिकेशन फर्स्ट का हमने फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंपेरेटिव सेंटेंस, थर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो क्लासिफिकेशन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस द सेंटेंसेज विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस विश और डिजायर। आपकी इच्छा आप बताते हैं, इच्छा व्यक्त करेंगे, तो उस इच्छा के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेम डेट टाइप एक्सक्लेमेटरी साइन भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी यूज़ होते हैं और एक्सक्लेमेटरी साइन ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी यूज़ किए जाते हैं। तो लाइक एग्जाम्पल्स, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू ए वेरी हैप्पी। आप उसके लिए ऑप्ट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मे यू गेट ए गुड जॉब, आपको अच्छी जॉब प्राप्ति हो। एक ऑप्टेटिव सेंटेंस कैन बी अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है और अफर्मेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। तो देखो मे यू द सेम सेंटेंस, मे यू गेट ए गुड जॉब एंड मे यू नॉट गेट ए गुड जॉब। नेगेटिव है लेकिन कौन सा जॉब है? मेल, मे का यूज हो रहा है, इट मीन्स ऑप्ट कर रहे हैं, हम इच्छा कर रहे हैं। तो मे यू गेट ए गुड जॉब। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, हम किसी को ब्लेस करते हैं तो गॉड ब्लेस यू। आई विश आई वर ए बर्ड, अपनी डिज़ायर है, अपनी विश है कि आई विश, मेरी विश, आई विश आई वर ए बर्ड, आई वर ए बर्ड। और मैं काश मैं एक पक्षी होता, और पक्षी होता तो क्या होता? उड़ के आपके पास आ जाता। क्यों? तो आई विश आई वर ए बर्ड एंड आई विश यू वर द PM ऑफ इंडिया। माई विश आई विश यू वर द PM ऑफ इंडिया। आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस का सेकंड पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड। क्लासिफिकेशन फर्स्ट में हमने 4 टाइप्स के सेंटेंस रीड किए थे। फर्स्ट सेंटेंस था हमारा असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। दीज 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर इन द क्लासिफिकेशन फर्स्ट एंड क्लासिफिकेशन सेकंड। द क्लासिफिकेशन सेकंड में हमारे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। हम इनकी
डिटेल से इनकी रीड करेंगे तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस दी दो सेंटेंसेस आर नेवर यूज इन नेगेटिव वर्ड, जिसमें नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होगा वो कौन से होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे। एंड नेगेटिव सेंटेंस जस्ट अपोजिट ऑफ दैट, इसमें नेगेटिव सेंटेंस यूज इन मस्ट रिक्वायर्ड, मस्ट होगा इसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस, तभी इसका क्या बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आस्क क्वेश्चन करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के भी होंगे, एक होगा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होगा WH वर्ड्स, जिससे हम प्रश्न पूछते हैं किसी से। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आप क्या पढ़ रहे हो, मैं आप क्या पढ़ रहे हो, तो आप क्या पढ़ रहे हो इट मीन्स मैंने आपसे इंट्रोगेटिव किया। और मैं आप इसमें अगर नोट लगा दूं, क्या आप नहीं पढ़ रहे हैं, क्या आप नहीं पढ़ रहे हो, आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं, यानी कि वाई भी आया और नोट भी आया, इट मीन्स नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे। तो क्लासिफिकेशन सेकंड, हमने इन टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ कितने क्लासिफिकेशंस में डिवाइडेड किया, हमने 3 क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन असर्टिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सेकंड क्लासिफिकेशन सेकंड में हमने ये कहा कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम डिटेल से इनका हम पढ़ेंगे अगला 1 बाय 1 कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। पहले आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस द क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड, क्लासिफिकेशन सेकंड के हमने 4 टाइप्स के सेंटेंस बताएं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका भी। तो अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस का द सेंटेंस इज रिटन और स्पोकन, वह सेंटेंस लिखा जाता है, बोला जाता है विदाउट नेगेटिव वर्ड, हमने विथ नहीं कहा है, विदाउट नेगेटिव वर्ड, बिना नेगेटिव वर्ड के अगर कोई भी सेंटेंस है डेट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस कौन सा होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। जैसे हमने एग्जांपल दिया, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, यहाँ पे कहीं कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। रमेश वांट्स ए बुक, रमेश एक बुक चाहता है, तो यहाँ पर भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं हुआ। दे रीड ए बुक, वो एक बुक पढ़ते हैं। तो इनमें जो हमने ये सेंटेंस दिए हैं, हम कितने ही सेंटेंस वी कैन राइट एंड वी कैन स्पीक, बट इट इज़ मस्ट रिक्वायर्ड देयर इज़ नो यूज़ ऑफ एनी नेगेटिव वर्ड। इफ़ अगर किसी नेगेटिव वर्ड का यूज़ होता है तो वो सेंटेंस कौन सा हो जाता है, नेगेटिव वर्ड। हमने जस्ट इसके नीचे नेगेटिव वर्ड लिया है कि नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस कौन से होंगे, द सेंटेंस इज रिटन और स्पोकन विथ नेगेटिव वर्ड्स। इसमें क्या था हमने, विदाउट नेगेटिव वर्ड, और इसमें आएगा विथ नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड के साथ में नेगेटिव वर्ड की नेसेसरी, नेगेटिव वर्ड की रिक्वायरमेंट से अगर हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वो सेंटेंस कौन सा होगा, नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, हार्डली दे रीड द रामायण, हार्डली दे रीड द रामायण, मुश्किल से ही शायद ही वो रामायण पढ़ते हैं। इट इज़ टू स्वीट टू ईट, इट इज़ टू स्वीट टू ईट, देयर इज़ नो नेगेटिव वर्ड इसमें, बट टू इज़ नेगेटिव वर्ड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट नो अबाउट दैट, नो एंड नॉट नाइदर और नेवर, ओनली फ्यू वर्ड्स आर नेगेटिव वर्ड, बट ऐसा नहीं है। इनमें ये मैंने आपको साइड में लिखा है कि ये नॉट, नो, neither, nor, hardly, scarcely, barely, seldom, too, few, little and never, these words अगर आप इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस कौन सा होगा, नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो ही इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट, नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है। हार्डली दे रीड द रामायण, हार्डली का यूज़ हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है। इट इज़ टू स्वीट टू ईट, इट इज़ ये कोई मिठाई है, मिठाई के लिए हम कहेंगे कि ये इतना मीठा है कि हम खा भी नहीं सकते, तो इसमें नोट का सेंस आ रहा है। तो इट इज़ टू स्वीट टू ईट, इतना मीठा है कि हमें खा भी नहीं सकते, और ये है नेगेटिव वर्ड्स। इन नेगेटिव वर्ड से नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। तो ये आपके 2 टाइप्स के सेंटेंस हुए, एक अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, एक नेगेटिव सेंटेंस हुआ। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आपको लेसन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्लासिफिकेशन सेकंड में हमारे 2 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस।
थर्ड पार्ट हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यू नो इट्स वेरी वेल कि व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, द सेंटेंस विच इज यूज्ड फॉर आस्क क्वेश्चन समबडी। वह सेंटेंस विच इज यूज जो काम में लेते हैं फॉर आस्क क्वेश्चन, क्या पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए हम काम में लेते हैं। तो आस्क क्वेश्चन समबडी, किसी से प्रश्न पूछते हैं तो हम उसका जो सेंटेंस यूज़ करते हैं क्वेश्चन के लिए, प्रश्न पूछने के लिए क्वेश्चन, तो वहाँ नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। यूज फॉर वन अनदर थिंग इज डैट इन द सेंटेंस लास्ट ऑफ द सेंटेंस यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे हम, ये क्वेश्चन मार्क हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेगेटिव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ sentences negative, one started with helping verb and another started with, another sentence started with WH words, started sentence। there are two types of negative sentences, ये यहाँ नेगेटिव नहीं होगा, the sentence which is used for ask question somebody, use of question mark। there are two types of interrogative sentences, there are two types of interrogative sentences, one is started with helping verb and other is started with WH words। वह क्वेश्चन जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डू हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। डू यू ईट स्वीट्स, क्या आप मिठाई खाते हैं। डिड यू गो देयर, क्या आप वहाँ गए थे। हैव यू ईटन ए मैंगो, क्या आप आम खा चुके हैं। तो एक टाइप के सेंटेंस जो हमने इनको प्रश्न बनाया, क्वेश्चन, डू से स्टार्ट हुआ हेल्पिंग वर्ब, डिड से स्टार्ट हुआ और हैव से स्टार्ट हुआ, लास्ट में इनके क्वेश्चन मार्क हुआ। नेक्स्ट WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट WH वर्ड्स, व्हाट आर यू डूइंग, फिर मार्क। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग और वेयर आर यू गोइंग, द सेंटेंसेज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, two types of interrogative sentences, the interrogative sentence used for some question, हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। और किसी से भी हम प्रश्न करेंगे तो हमारा जो प्रश्न करने वाला जो सेंटेंस होगा वो हमारा कौन सा होगा, क्वेश्चन सेंटेंस होगा और उसे हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने आपको बता दिया टू टाइप्स के होंगे, एक हेल्पिंग वर्ब से होगा, एक WH वर्ड से होगा। इन दोनों के एग्जाम्पल्स आपने ये देख लिए। नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कई टीचर्स या स्टूडेंट्स इसमें नोट लगा देते हैं, इसमें नोट नहीं आता है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नहीं होता ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं सेंटेंसेस। तो यहाँ पे द सेंटेंस विच इज यूज्ड फॉर आस्क क्वेश्चन विथ नेगेटिव वर्ड्स, द सेंटेंस विच इज यूज्ड फॉर आस्क क्वेश्चन विथ नेगेटिव वर्ड्स। हम इन्हें कहें कि कोई भी नकारात्मक वर्ड के साथ आप किससे प्रश्न पूछते हैं तो वो कौन सा होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो वाई डू यू नॉट गो देयर, वाई इट इज़ यूज फॉर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए हमने वाई यूज़ किया और नॉट का यूज़ किया आपने, तो वाई और नॉट यूज़ होते ही सेंटेंस कौन सा हो गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। इसी तरह से हमने हेल्पिंग वर्ब से बनाया, डिड यू नॉट ईट फूड, या आप खाना नहीं खाए थे तो डिड यू नॉट फूड, तो ये सेंटेंस हुआ हेल्पिंग वर्ब का और ये WH वर्ड्स का हुआ। इसलिए हमारे क्लासिफिकेशन सेकंड के 4 टाइप्स के सेंटेंस कंप्लीट होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव और लास्ट कौन सा हुआ, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से ये 4 सेंटेंस हमारे हुए। इसके बाद हम लेंगे क्लासिफिकेशन थर्ड, क्लास सेंटेंस के क्लासिफिकेशन थर्ड टाइप का। आपको पता है हमने सेंटेंसेस को 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन फर्स्ट, क्लासिफिकेशन में फर्स्ट में हमने क्या दिया, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस।
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। क्लासिफिकेशन थर्ड अब हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको रीड में आसानी रहेगी। क्लासिफिकेशन थर्ड में हमारा फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस, नेक्स्ट कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मिक्स्ड सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होंगे? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे नो अबाउट द सिंपल सेंटेंस दैट इज ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल सेंटेंस कहते हैं, ऐसा रॉन्ग है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिंपल सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं। सिंपल सेंटेंस का मतलब वहाँ किसी तरह का कोई दूसरा कंजंक्शन नहीं हो, जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो। तो ओनली वन फाइनाइट वर्ब यूज, दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेज। एक ही फाइनाइट वर्ब हो, वो कौन सा होता है? सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस डे में भी द नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। इसके अंदर सिंपल सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जब हम जोड़ देते हैं तो पूरा सेंटेंस, एक क्लोज दूसरा क्लोज, एक क्लोज को कहेंगे हम कंपाउंड सेंटेंस का एक होगा कोऑर्डिनेट क्लोज, दूसरा होगा डिपेंडेंट क्लोज या मेन क्लोज। तो वो दो क्लोज मिलकर के एक सेंटेंस बनेंगे और उस एक सेंटेंस का पूरे का नाम होगा कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज होता है। तो जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज होता है, उसके अंदर जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज होता है, उसके बाद वाला जो क्लोज है वो नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज वो यूज होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज, और जो पहला क्लोज है वो होता है प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज। तो मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज दोनों मिलकर के एक सेंटेंस बनता है जिसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और एक सेंटेंस होता है मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस में दोनों ही कंजंक्शन यूज होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का भी यूज होता है और कंपाउंड का भी होता है। देखिए जैसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो मिक्स्ड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का भी यूज होगा और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का भी यूज होगा। तो एक क्लोज कोऑर्डिनेट का होगा, दूसरा सबऑर्डिनेट का, तीसरा डिपेंडेंट मेन क्लोज होगा, इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, मेन क्लोज। तो इस तरह से तीन क्लोज वाले को हम बोलेंगे मिक्स सेंटेंस। तीन से ज़्यादा भी हो सकता है, मिनिमम तीन क्लोज होने चाहिए, वो मिक्स सेंटेंस होगा। इसी तरह से क्लासिफिकेशन थर्ड हुआ हमारा। ये क्लासिफिकेशन थर्ड में हुआ। पहले जब हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डिस्कशन किया था तो उस समय कुछ हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को हमने जिक्र नहीं किया था, डिस्क्रिप्शन एक बार आप इनका देख लें। कि जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हा, हुर्रे, दीज वर्ड्स इज यूज फॉर एक्सप्रेशन ऑफ सडन एक्सप्रेशन या जॉय, खुशी बताने के लिए आपको क्या होगा? हो, हुर्रे। और जब आप अपना सडन एक्सप्रेशन सोरो, दुख में भी बताएंगे तो वहाँ होगा लास, ओ। तो दीज टाइप ऑफ वर्ड्स आर एक्सप्रेशन ऑफ सोरो, दुख व्यक्त करेंगे आपका। ओ, वाट, और ये क्या होगा? सरप्राइज होगा। किसी भी चीज़ का आप सरप्राइज, अचानक कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ओ नो, तो डेट इज आपको सरप्राइज हुआ इस चीज़ का कि ओ ऐसा क्यों हो गया, तो डेट इज ए ओ। वाट ए ब्यूटीफुल हाउस, आपने एक पेंटिंग बनाई और आपने किसी को पेंटिंग दिखाया, तो पेंटिंग देखने के बाद अगला सरप्राइज होता है उस पेंटिंग को देख, हाउ कैन यू मेक द ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो वो कहेगा व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, क्या सुंदर पिक्चर है। तो ब्र, हियर, अप्लेस, आप किसी के अप्लेस करते हैं, आपको आप ताली बजाते हैं, ब्रेव करते हैं, हियर तो अपलोड करने के लिए, अप्लेस करने के लिए आपने हियर या ब्रेव किया। नेक्स्ट है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट करने के लिए, किसी को कंटेम्प्ट होता है तिरस्कार करना, निंदा करना, इस तरह से, तो हम कहेंगे फू 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 फू, फाई 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 फाई, कितना श्रम की बात है। तो फू फू और फाई फाई, दीज वर्ड्स आर कंटेम्प्ट। तो आपके ये वर्ड्स हुए आ, हुर्रे जॉय के लिए, अल्स, अलास, हो सौरों के लिए, हो वाट सरप्राइज, ब्र हियर अप्लोज के लिए, फू फू
55 दीज वर्ड्स आर कंटेम्प्ट। तो उस समय जब हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डिस्कशन किया था तो उस समय हमने एक्सक्लेमेटरी वर्ड का यूज़ नहीं किया था। तो मैंने यहाँ पे जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड का तो आपके पास एक ये भी चीज़ मिलेगी। तो हमारी टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने हुए? टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमारे 3 टाइप्स की हुई है। तो एक जो सेंटेंस है उसके 3 तरह से हमने क्लासिफिकेशन किए। पहला क्लासिफिकेशन हमने 4 सेंटेंस बताए। फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव, फर्स्ट सेंटेंस हुआ हमारा असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड वाले क्लासिफिकेशन में इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और लास्ट कौन सा हुआ? ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसी तरह से नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे सेंटेंस का। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में फिर हमारे 4 सेंटेंस हुए, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। फिर हमने क्लासिफिकेशन थर्ड किया। क्लासिफिकेशन थर्ड में सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस। तो ये टाइप ऑफ सेंटेंस है। हमने क्लासिफिकेशन 1 और 2 का डिटेल से डिस्क्रिप्शन किया है। क्लासिफिकेशन थर्ड का सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल सहित हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे पहले इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।